द रीज़न मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी आवाज़ गूंजती है। यस, ये सवाल, दिशा का सवाल, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी है सूरज पंचोली से। हाउएवर, आप देखिए बीच वाली लड़की दिशा है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड वाली कियारा एडवाणी है, और इधर वाला सूरज पंचोली है। जब सूरज से पूछा गया कि क्या वो दिशा सेलियान को जानता है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। आप ऊपर देख सकते हो, लिखा हुआ है, आई हैव नेवर मेट दिशा इन माई होल लाइफ, आई फाउंड अबाउट हर आफ्टर सुशांत डेथ। कितना सफेद झूठ बोलते हैं। और सलमान खान, कहाँ तक तुम बचाओगे? पहले इसने जिया खान को मारा, फिर इसने दिशा सेलियन को मारा, और अब इसने सुशांत सिंह को मारा है। तो ये तो गया और आप भी गए। फिर बताया जाता है कि आदित्य ठाकरे भी इसका एक रोल है, क्योंकि 13 जून, एक रात पहले जब सुशांत सिंह मरे हैं, उससे पहले आदित्य का बर्थडे था। और क्वेश्चन सामने आ रहा है, और वो सोचने वाली बात है कि सब लोग कह रहे हैं कि दुनिया इतना चिल्ला रही है, बट इनकी फैमिली इस बारे में क्यों नहीं कह रही है। तो मैं बता दूं कि ये जो है, ये उसकी बहन के ससुर हैं, सुशांत की बहन के ससुर, और इन्होंने नेक्स्ट डे ही मोदी जी को और काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं उनको अपनी तरफ से लिखा था, जो कि अब उनके ट्विटर अकाउंट पे नहीं दिख रहा है। उनका ट्विटर अकाउंट ही नहीं दिख रहा है। ये एक एडवोकेट है जिन्होंने नेक्स्ट डे ही ये चीज़ बोल दी थी, बिकॉज ये एक क्रिमिनल एडवोकेट है। तो इन्होंने भी बोला, इनके भी अकाउंट से ये मैसेज डिलीट कर दिया गया। हमें पता है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जब हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ फिशी है, वो सारे मैसेजेस या सीबीआई इंक्वायरी मैसेजेस रिक्वेस्ट जो हैं उन सबको डिलीट किया जा रहा है। तो हमें पता है ये लोग एविडेंसेस मिटा रहे हैं। इट्स बीन मोर देन 24 डेज। ऑफ कोर्स सारे एविडेंसेस को ख़त्म कर दिया होगा, तो क्या कर सकते? Yes, I do understand that it's been more than 3 weeks. I know the time has run out. I know that when the politician's son is involved, police administration authorities must have done their best to eliminate any kind of remaining evidences, rubbing them off. But the power lies with you and with me. We can make the noise, we can let them listen that we are not going to settle for anything less than the culprits being punished. So what can we do about it? We have seen that in past there has been so many murders in the Bollywood industry, but they have gone away with it. But this time we have to shout, we have to scream, we have to make our noises. How can we get our hero the justice he deserves? I think the one theory which is going on, that is, was Disha Salian pregnant or being raped by some? So he was an ordinary man, just like us, you and me, who was trying to break the norm of the society, wanted to live his dreams, aspirations, dreams about living high life. What has been done to him? He is no more amongst us. And that's precisely the reason they want to build that kind of class, that kind of society. So do you want to break? Do you want him to get justice? As his fan and admirer, what can be done? So we know that his body has been cremated quickly by his friend Sandeep Singh. He made all the all the arrangements of getting his body cremated quickly. So we do know there are very little evidences left now, and because a big politician's son is involved, they have scraped away all the left or remaining evidences so that they cannot catch the culprit. Definitely the case even now also, because a politician or big people's sons are involved in this case. They will run away without getting the justice being served. Are you ready? Because what I am suggesting you is, this is how we're going to do about it. We're going to go about it is that we know that Sushant's body has been cremated. Evidences must have been rubbed away. But as far as we know, there is a theory that Disha Salian was being invited to Aditya Pancholi's son Suraj party, the New Year's party, and that's where she has been. It's a rumor, and the sources have said that she has been raped, and that's how she conceived. So if that's true, and how people are saying that yes, she was having morning sickness, she was pregnant when she committed suicide, so it could be a proof, because she is a Christian, her body was.
As we know that Disha Salian was a Christian, she was buried, not incremated. So there is a chance, there is a fair chance that we can get ourselves heard by requesting PM office to take her body out, get the postmortem done. If it's been proved that she was pregnant at the time of her death or suicide, it give us a good thing that it was a foul play. Plus, from her DNA or the baby DNA in her tummy, we could easily know who is the father, who is the culprit of the baby. Then this theory can be proved, and yes, then we can get the justice being served or done. Are you guys ready to scream your lungs out to let people know that we are not quiet? No, we are not going to get our hero die like a death of a coward by saying that. किसी ने मुझसे पूछा कि अब क्या हो सकता है, इतना टाइम गुजर गया है, किस तरीके से इंसाफ हो सकता है। तो मेरे को सिर्फ एक ही बात याद आती है कि आप देखिए, हमारी आवाज़ में पावर है। अगर हम लोग सब चिल्लाएं और ये बात हम ठंडी ना होने दें, ये आग हम ठंडी ना होने दें, तो अभी भी पॉसिबल है। क्योंकि माना सुशांत की बॉडी का क्रिमेशन हो चुका है, बट दिशा सेलियान एक क्रिश्चियन है, उसकी बॉडी को बरी किया है तो वापस रिट्रीव करके अभी भी पोस्टमार्टम हो सकता है और देख सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ डिमाइस और नॉट। अगर प्रेग्नेंट थी तो ये सारी थ्योरी क्लीन हो जाती है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है उसको पीस में छोड़ने के लिए। रीज़न बीइंग, जब मुंबई का सीएम का बेटा इन्वॉल्व्ड हो तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ने नहीं दे सकता, बट हम लोग शोर तो मचा सकते हैं ना कम से कम। तो किसी ने मुझसे पूछा कि अब क्या हो सकता है, इतना टाइम गुजर गया है, किस तरीके से इंसाफ हो सकता है। तो मेरे को सिर्फ एक ही बात याद आती है कि आप देखिए, हमारी आवाज़ में पावर है। अगर हम लोग सब चिल्लाएं और ये बात हम ठंडी ना होने दें, ये आग हम ठंडी ना होने दें, तो अभी भी पॉसिबल है। क्योंकि माना सुशांत की बॉडी का क्रिमेशन हो चुका है, बट दिशा सेलियान एक क्रिश्चियन है, उसकी बॉडी को बरी किया है तो वापस रिट्रीव करके अभी भी पोस्टमार्टम हो सकता है और देख सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ डिमाइस और नॉट। अगर प्रेग्नेंट थी तो ये सारी थ्योरी क्लीन हो जाती है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है उसको पीस में छोड़ने के लिए। रीज़न बीइंग, जब मुंबई का सीएम का बेटा इन्वॉल्व्ड हो तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ने नहीं दे सकता, बट हम लोग शोर तो मचा सकते हैं ना कम से कम। तो चलो